everyone, Planet Bollywood में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood, social media and entertainment. Before I get started, a quick reminder to all our viewers to go check out our Zoom Facebook page for more updates on your favorite Bollywood celebrities. For now, just sit back, relax and enjoy the top stories of the day. Bombay High Court quashes Rhea Chakraborty's complaint against Sushant Singh Rajput's sister, Meetu Singh. Dia Mirza and Vaibhav Rekhi are hitched. Deepika Padukone channels her alter egos as she dances her heart out in a new video. Randhir Kapoor issues clarification after trolls slammed the Kapoor family for celebrating his birthday just days after Rajiv Kapoor's demise. दिया मिर्जा और वैभव रेखी बंध गए शादी के बंधन में। Rhea and Vaibhav made their first public appearance together post their wedding और दोनों ने एक साथ paparazzi के लिए पोज भी किया। जिया जी क्यों हिल रहे यार? जिया जी जिया जी दिया ने फिर आगे आकर प्रेस फोटोग्राफर्स को मिठाई बांटी, लेकिन वैभव प्रेस के साथ बात करने आगे नहीं आए। कांग्रेचुलेशंस मैम, कांग्रेचुलेशंस मैम। जब दिया से पूछा गया कि उनके हबी क्यों पीछे रुक गए, तो दिया ने बताया कि वो बहुत शाय है। Dia Mirza has started 2021 on a happy note as she married Vaibhav Rekhi in a very private ceremony with just immediate family and friends attending. शादी दिया के पाली हिल रेजिडेंस से अटैच्ड एक गार्डन में हुई and the bride looked absolutely stunning in a traditional red बनारसी सिल्क साड़ी जिसे पहनकर उनकी खूबसूरती में चार चांद लग गए। Take a look. दिया और वैभव के वेडिंग सेरेमनी से कुछ पिक्चर्स और वीडियोस सोशल मीडिया पे शेयर हुए हैं, जहां दिया दुल्हन के लाल जोड़े में सजकर वैभव से शादी करने मंडप तक जा रही थी। दिया मिर्जा has carved a niche for herself, choosing unusual roles and characters in the course of her career. The actor producer made a stunning bride, जो अपनी simplicity में और भी सुंदर लग रही थी। दिया ने लाल बनारसी साड़ी के साथ शादी के दौरान सर पर लाल चुन्नी भी ली थी। In a heartwarming video shared online, दिया जब मंडप की तरफ जा रही थी, तो वैभव की बेटी भी उनके साथ थी, and she held up an adorable board that said "Papa's Girls." Looks like Dia shares a good equation with her, and it was lovely to see such an open-minded and loving gesture from a young girl. The wedding was a very private affair given the current restrictions and had just 50 people attending the ceremony. Actor Aditi Rao Hydari भी wedding में invited थी और उन्होंने दूल्हे का जूता छुपाने की रस्म भी पूरी की। एक सिंपल सेरेमनी में शादी करने के बाद दिया और उनके हस्बैंड वैभव ने प्रेस के लिए पोज भी किया and allowed paparazzi to take their first official pictures as husband and wife. जिया जी क्यों हिल रहे यार? जिया जी जिया जी जिया जी लेकिन वैभव जो शो बिजनेस से नहीं है, शायद थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहे थे, इसलिए मीडिया में स्वीट्स बांटने के लिए सिर्फ दिया आगे आई। दिया थैंक्ड द फोटोग्राफर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स टू ईच पर्सन पर्सनली। कांग्रेचुलेशंस मैम,
Congratulations. शादी के एक दिन पहले दिया ने अपनी मेहंदी का फोटो शेयर किया था, which she captioned प्यार, and had also shared pictures from what appeared to be a pre-wedding party cum bachelorette, जहां दिया और वैभव ने अपने दोस्तों के साथ खूब एंजॉय किया। We wish Diya and Vaibhav a very happy married life and we hope कि उन्हें दुनिया की हर खुशी मिले। दिया जी क्यों हिल रहे यार? दिया जी Congratulations मैम। हेलो। कैसे हो मैम आप? बढ़िया, आप कैसे हो? ठीक हो रही हूँ। कैसे हो मैम आप? बढ़िया, आप कैसे हो? ठीक हो रही हूँ। In a development related to the Sushant Singh Rajput case, बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिया चक्रबॉर्ती के फाइल किए गए कंप्लेंट पर अपना फैसला सुनाया। रिया ने सुशांत की बहनें मीतू सिंह और प्रियंका सिंह के खिलाफ कंप्लेंट फाइल की थी और उन पे सुशांत को गलत दवाइयां देने का इल्जाम लगाया था। हाईकोर्ट ने मीतू सिंह के खिलाफ कंप्लेंट क्वॉश कर दी है, लेकिन प्रियंका के खिलाफ फाइल किया गया एफआईआर क्वॉश नहीं हुआ है। Sushant Singh Rajput passed away under tragic circumstances at his home in Bandra in June last year. सुशांत के देहांत के बाद उनकी फैमिली ने रिया चक्रबॉर्ती के खिलाफ एफआईआर फाइल किया था, जिसमें उन पे कई गंभीर आरोप लगाए गए। Riya is currently out on bail, but the actor, who underwent a brutal trial by media, filed a counter complaint against Sushant's sisters, alleging that they changed Sushant's medication with a forged prescription. The CBI, who is yet to close their investigation into Sushant Singh Rajput's demise, is also looking into whether Priyanka, his sister, forged a prescription of medicines for Sushant. सुशांत की फैमिली ने रिया को उनके अचानक हुए डिमाइस के लिए जिम्मेदार ठहराया था, फ्रॉम साइफनिंग ऑफ सुशांत's funds to abetting his demise. They had leveled multiple accusations against her and alleged that she had deliberately distanced Sushant from his family. प्रियंका और सुशांत के बीच के चैट्स जब न्यूज चैनल्स पे रिवील हुए तो ये बात सामने आई कि प्रियंका सुशांत से उनकी दवाइयों के बारे में बातचीत कर रही थी। सुशांत वाज ऑन मेडिकेशन फॉर एंजाइटी एंड डिप्रेशन एंड अकॉर्डिंग टू रिया, जब प्रियंका ने बिना डॉक्टर से मुलाकात किए सुशांत की ये क्रूशल दवाइयां बदलने की कोशिश की तो रिया और सुशांत का झगड़ा हुआ एंड ही allegedly asked her to leave his home. Riya had then filed a complaint against Sushant's sisters Meetu Singh and Priyanka Singh, accusing them of forging a prescription of medicines prescribed for psychological ailments, which is prohibited under the Narcotic and Psychotropic Substances Act 1985. रिया के कंप्लेंट्स के बेसिस पे बांद्रा पुलिस ने मीतू और प्रियंका के खिलाफ एफआईआर लॉन्च किया था। रिया, who spent a month in jail, is finally out on bail and slowly resuming a regular life. The Bandra police in the meanwhile had filed an FIR against Sushant's sisters based on her complaints and Dr. Tarun Kumar of the Ram Manohar Lohia Hospital, Delhi. कई महीनों के बाद कोर्ट ने मीतू के खिलाफ फाइल किए गए केस को क्वॉश कर दिया है, लेकिन प्रियंका के खिलाफ फाइल की गई केस अभी भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है. This may be because the chats imply that it was Priyanka who had got the prescription for Sushant. रिया के वकील सतीश मानिशंदे ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "We are satisfied with the verdict. It appears ultimately Riya Chakraborty's cry for justice and truth has prevailed. Satyamev Jayate." मीतू और प्रियंका के लॉयर विकास सिंह ने कहा है कि वो इस केस को सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज करेंगे. As the legal battles in Sushant's demise continue, in an unfortunate development,
संदीप नाहर, जिन्होंने एमएस धोनी में सुशांत के दोस्त का किरदार निभाया था, वो अपने घर में चल बसे। Police believe that Sandeep took the drastic step of causing his own demise after facing multiple difficulties in his personal and professional life. It's unfortunate indeed कि सुशांत की demise के इतने महीने बाद भी इस केस में अभी तक कोई क्लोजर नहीं हुआ है। Hopefully, the CBI will submit its report soon and this unfortunate chapter will finally come to an end. वैसे तो एक दीपिका पादुकोण भी सब पे भारी है, पर इन अ न्यू वीडियो शी हैज पोस्टेड ऑन सोशल मीडिया, जिसमें एक या दो नहीं बल्कि 5-6 दीपिका हैं। दीपिका ने अपना एक फनी न्यू वीडियो सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है, जहां स्पेशल इफेक्ट से उनके कई क्लोन्स बन गए हैं, जो एक साथ डांस और पोज कर रहे हैं। और एज दीपिका कॉल्स इट, इस वीडियो में वो और उनके ऑल्टर ईगोज हैं। दीपिका के इन ऑल्टर ईगोज को एक साथ डांस करते हुए देखकर उनके हस्बैंड रणवीर भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए। Deepika Padukone is one of Bollywood's most successful and highly paid actors. दो वो किसी फिल्म फैमिली से बिलोंग नहीं करती, दीपिका ने अपनी कड़ी मेहनत से इस मुकाम को हासिल किया है। The actor has several high-profile projects lined up for filming and release, including the film with Prabhas, Shah Rukh Khan and Hrithik Roshan. But as busy as she may be, Deepika hasn't forgotten how to have some fun. Take a look. दीपिका ने नया साल शुरू होने से पहले अपने एक सोशल मीडिया अकाउंट से सारे पुराने पोस्ट डिलीट कर दिए थे। 2021 में वो नया किस्म का कंटेंट अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर कर रही है। And it looks like she's also creating a brand new content for her handle. बेक ऑफ कंपटीशन और मेकअप वैन में से वीडियोस पोस्ट करने के बाद दीपिका ने अपने सोशल मीडिया पेज पे एक और मजेदार वीडियो शेयर किया है, जहां वो दिल खोल के डांस कर रही है। दीपिका ने वीडियो क्लिप में येलो जैकेट, पीच योगा पैंट्स और मूव क्रॉप टॉप पहना है, which makes her look young and lively. अपने शॉर्ट बेबी बालों को उन्होंने ओपन रखा है और अपना मेकअप मिनिमल। Deepika seems to be having a blast dancing to goofy steps as there are multiple Deepikas pop up from around her and it shows us her different moves. दीपिका ने अपने इस अतरंगी वीडियो को कैप्शन करते हुए लिखा, Me and all my alter egos. फैंस को दीपिका का ये नया अंदाज बहुत पसंद आया, लेकिन उन्हें अपने हस्बैंड रणवीर सिंह से एक स्पेशल कॉम्प्लीमेंट मिला। रणवीर फाउंड द न्यू वीडियो रियली फनी और उन्होंने दीपिका के पोस्ट पे ढेर सारे लाफिंग आउट लाउड इमोजीज पोस्ट किए। वरुण धवन, जो खुद काफी हटके सॉन्ग एंड डांस नंबर कर चुके हैं, ऑल्सो लाइक द वीडियो और उन्होंने दीपिका के पोस्ट पे अपना अप्रिसिएशन इमोजीज से शेयर किया। स्पेशल इफेक्ट से क्रिएट किए गए दीपिका के ये क्लोन्स उनके ओरिजिनल सेल्फ के साथ थोड़ा बहुत इंटरैक्ट करते हुए दिखाई देते हैं, बिफोर दे ऑल स्ट्राइक अ पोज विद इंडिविजुअल एटीट्यूड्स एट द एंड ऑफ द क्लिप। Well, it looks like दीपिका अपने ऑनलाइन इमेज को इस साल रिफ्रेश कर रही है, and we can't wait to see what original ideas she comes up with in the months to come. रणधीर कपूर ने किया है अपनी फैमिली को डिफेंड। द वेटरन एक्टर हैज क्लैरिफाइड कि उनके जन्मदिन पर जश्न या पार्टी नहीं हुई थी। ये सिर्फ एक छोटा सा गेट टुगेदर था, जहां उनके करीबी रिश्तेदार उनके साथ उनके जन्मदिन पर मौजूद थे। Ranbir Kapoor turned 74 just days after his youngest brother Rajiv Kapoor passed away unexpectedly.
Randhir's daughters Karisma and Kareena, son-in-law Saif, nephew Ranbir and his girlfriend Alia और फैमिली के कई दूसरे मेंबर्स रणधीर जी के बर्थडे पर उनके घर के बाहर दिखाई दिए थे। The family was slammed by trolls and netizens for celebrating a birthday party less than a week after Rajiv Kapoor's demise. रणधीर जी ने पिछले एक साल में अपने दोनों भाइयों को और बहन रितु नंदा को खो दिया है। पिछले साल जनवरी में रितु जी की डिमाइस हुई थी। अप्रैल में ऋषि कपूर एक बीमारी से जूझने के बाद चल बसे और पिछले हफ्ते राजीव कपूर भी अचानक गुजर गए। Losing 3 of his siblings in just a year has been a huge shock for रणधीर जी, क्योंकि एक-एक करके उनके सारे अपने उनसे छूटते जा रहे हैं। रणधीर जी ने कहा भी था कि अब उनके चेंबूर के घर पे वो बिल्कुल अकेले रह गए हैं। शायद उनके अकेलेपन को कुछ देर के लिए दूर करने उनका परिवार उनके जन्मदिन पर उनसे मिलने आया था। करीना, सैफ एंड तैमूर, आलिया एंड रणबीर, करिश्मा एंड हर किड्स, नीतू कपूर, अरमान जैन एंड तारा सुतारिया ने इस गेट टुगेदर को अटेंड किया था एंड paparazzi spotted them entering and leaving रणधीर कपूर्स रेजिडेंस। फैमिली में किसी ने भी प्रेस के लिए पोज नहीं किया, बट नेटिजन्स वो वेरी एंग्री कि राजीव कपूर के देहांत के कुछ ही दिनों बाद फैमिली एक साथ पार्टी कर रही थी। Many trolls felt कि इस तरह सेलिब्रेट करना हमारे कल्चर के खिलाफ है और राजीव के मेमोरी का अपमान है। After facing a strong backlash, रणधीर कपूर ने ये क्लैरिफाई किया है कि उनके जन्मदिन पर कोई पार्टी या जश्न नहीं हुआ था। Speaking to a news portal, रणधीर जी ने बताया, "It was a small meetup, a solemn affair. There was no celebration. We are missing my younger brother Rajiv. He passed away last week due to a. We are yet to come to terms with it." शायद अपना दुख बांटने के लिए पूरा कपूर परिवार एक साथ आया था। लोग अगर अपनी खुशियां अपने तरीके से मना सकते हैं, तो फिर दुख भी हर कोई अपने तरीके से महसूस कर सकता है। It would be great if we gave people, even celebrities, the space to conduct their lives the way they want to. जानवी कपूर है possessed और उन्हें किडनैप किया है राजकुमार राव और वरुण शर्मा ने। Yes, you heard that right. The trailer for Ruhi dropped today and it is exciting to see a brand new horror comedy from the makers of Stree. रूही में जानवी कपूर पर छाया है एक बुरा साया, जिसकी वजह से उनके किडनैपर्स वरुण और राजकुमार परेशान हैं। How will they handle a girl who is possessed and what adventures will they have as they try to find a solution? Janhvi Kapoor, who made her big Bollywood debut in 2018 with Dhadak, has been choosing unusual scripts and characters over the past 2 years. After impressing audiences with her performance in Gunjan Saxena, The Kargil Girl, Janhvi will now be seen in this interesting new horror comedy opposite talented actors like Rajkumar Rao and Varun Sharma. ये पहली बार है जब जानवी एक हॉरर कॉमेडी में दिखेंगी। The actor has worked in largely mainstream dramatic films और इस फिल्म के साथ वो अपना एक नया पहलू ऑडियंसेस को दिखा पाएंगी। राजकुमार इससे पहले स्त्री में काम कर चुके हैं and this is his second film in the स्त्री franchise. सोर्सेस के मुताबिक इस फिल्म में एक सुपरनैचुरल कैरेक्टर है जो शादी वाले घरों में वार करती है। दूल्हे को अपनी आवाज से सुलाकर ये स्क्रिप्ट दुल्हनों को किडनैप कर लेती है। ट्रेलर में राजकुमार और वरुण जानवी को किडनैप करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन किडनैपिंग के बाद उन्हें पता चलता है that she is possessed and dangerous. जानवी को छत से लटकते देखकर दोनों ही डर जाते हैं और फिर वो जानवी पे से ये डरावना साया हटाने की कोशिश में लग जाते हैं।
ट्रेलर देख के लगता है कि फिल्म में कई कॉमिक और स्कैरी मोमेंट्स होंगे और राजकुमार और वरुण कई तरीके आजमाएंगे जानवी के सर से काला साया हटाने के लिए। मंत्र तंत्र सब ट्राई होता हुआ दिखाई देता है, बट इट लुक्स लाइक जिस साय ने जानवी पे कब्जा किया है वो शादी करके ही शांत होगी। पर ऐसी डरावनी दुल्हन से आखिर कौन करेगा शादी? क्या राजकुमार और वरुण जानवी और अपने आप को इस मुश्किल से निकाल पाएंगे? Well, you can find out in movie theaters across India, जहां ये फिल्म रिलीज होगी। लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस लिफ्ट होने के बाद दिस इज अ हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म दैट विल बी रिलीज्ड ऑन द 11th of March. The film is releasing in 1500 theaters across India और हम यही होप करते हैं कि ऑडियंसेस धीरे धीरे मूवी हॉल्स में लौटना शुरू करें और बड़े पर्दे पे फिल्मों का आनंद उठाए। गाइस, प्लैनेट बॉलीवुड में अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बट आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। स्टे विद अस। एक वक्त था जब सिर्फ बड़े पर्दे के सितारों को सेलिब्रिटीज माना जाता था। There was this perceived gap between movie stars and television actors. But with the explosion of digital content and social media, आज ऐसे कई small screen celebs हैं जिनकी popularity किसी movie star से कम नहीं है। People want to know about the highs and lows from their lives too. So here are the top updates from the world of television and social media. रियलिटी शो स्टार, एक्टर और सिंगर शहनाज गिल ने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अब 7 मिलियन फॉलोअर्स का माइलस्टोन अचीव किया है। शहनाज गिल, who shot to fame after participating in a reality show hosted by Salman Khan, is now hugely popular on social media. शहनाज गिल के इस अचीवमेंट पे उनके फैंस ने उन्हें ढेर सारी बधाइयां दी और उनके नाम के हैशटैग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ट्रेंड करने लगे। The stunning television and film actor shared pictures of a gorgeous diamond engagement ring and announced कि वो और उनके long-time boyfriend रॉकी जायसवाल अब शादी करने जा रहे हैं। हिना खान ने अपनी रिंग की कुछ stunning pictures सोशल मीडिया पर शेयर की and declared to her fans and followers कि उन्होंने रॉकी जायसवाल को yes कह दिया है। It has been a year since Siddharth Shukla won the 13th season of a reality show hosted by Salman Khan. उनकी जीत की पहली एनिवर्सरी पर सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस ने सोशल मीडिया पर सेलिब्रेट किया, calling him the greatest all-time winner. The hashtag 1 year of iconic winner Sid was trending on a micro-blogging site. फैंस ने कई मैसेजेस और पोस्ट से सिद्धार्थ शुक्ला के लिए अपना प्यार शेयर किया। राहुल वैद्य की फियांसे दिशा परमार को राहुल वैद्य और रुबीना धिलायक का सॉन्ग एंड डांस परफॉर्मेंस बहुत पसंद आ रहा है। Rahul Vaidya and Rubina Dhilayaka are currently contestants on a reality show hosted by Salman Khan. And in the recent episode, दोनों एक साथ स्लो डांस करते हुए दिखाई दिए। इस परफॉर्मेंस की क्लिप को देखकर दिशा परमार ने अपने सोशल मीडिया पेज पर लिखा, "Episode is going to be iconic. Haha. Is it just me or did Rubina actually look like Juhi Chawla?" वहीं जब दिशा परमार के फैंस ने दिशा परमार से पूछा how she felt about Rahul and Rubina's equation, तो दिशा परमार ने दिया super cool response और कहा, "She thinks it's damn interesting." टैलेंटेड कॉमेडियन सुनील ग्रोवर कपिल शर्मा के होस्ट किए गए टेलीविजन शो में शायद बहुत जल्द दिखेंगे। सुनने में आया है कि सलमान खान जो कपिल शर्मा की शो को प्रोड्यूस करते हैं, कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर की सुलह करवाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इफ ऑल गोज वेल, सुनील ग्रोवर कपिल शर्मा के शो के अगले सीजन में हमें फिर दिखेंगे। Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. Do not forget to leave your views and comments in the comment section on our social media handles and digital platform. This is me, Sagarika Chetri, signing off for now, promising to be back tomorrow. You guys stay home and stay safe.